داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، 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 قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور ساتھی شعر دیکھیں محبتوں کے ساتھ کہ خلد ذات طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد ذات طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد ذات طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، اس طرح سفر ہوتا، آگے آگے سر جاتا، آگے آگے سر جاتا، پیچھے پیچھے دل جاتا، آگے آگے سر جاتا، پیچھے پیچھے دل جاتا۔ اور میری زندگی کی ڈائری میں اس سے خوبصورت شعر نہیں ہے، شعر دیکھنا جی کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کی آستانے کی خاک میں مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب۔ کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہنشاہ بغداد، جانشین حضور فاضل ملت، فیضان حضور مخدوم ملت، حضور سیدی یاسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے لیے خوش وقت کی بات ہے، اولاد مخدوم ابد محافظ ناموس رسالت پیرزادہ والا شان حضرت علامہ سید محمد آصف میاں صاحب قبلہ زیدہ مزدہ و شرفہ سجادہ نشین خانقاہ فردوسیہ ظفریہ بلہاری شریف وقدی نشین حضرت درگاہ عالیہ حضرت شیس پیغمبر علیہ السلام ایودھیا فیض آباد، حضرت کی رخ زیبا کی زیارت کریں اور شریعت ملاحظہ فرمائے، مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ یار بھائی دیکھو میں ایسا نہیں کہنے والا بولنے والا کہ بھائی جاگو جاگو بولو، یہ سب میرے سے نہیں ہونے والا، آپ محبتوں کے ساتھ بولے ہے نا، اگر عشق ہے تو بولو یار، ایک رات اپنے نبی کے نام پہ نہیں بول سکتے ہے نا، بولو اور محبتوں کے ساتھ بولو۔ شعر دیکھیں، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا،
ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. مقطع دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. ان کے در پہ خاطر کی حسرتیں ہوئی پوری. ان کے در پہ خاطر کی حسرتیں ہوئی پوری. حسرتیں ہوئی پوری. سائل در اقدا سائل در اقدا کیسے منفعل جاتا. سائل در اقدا کیسے منفعل جاتا. عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے. شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. مجھے بھی ان کے غلامی کے سب پہ رہنا ہے. خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے. صاحبو یہ مت سمجھنا کہ نعت پڑھنا صرف یہ اسٹیج والے ہی جانتے ہیں، بلکہ مسلمان کے گھر کا ہر بچہ مصطفیٰ کی نعت پڑھنا جانتا ہے. آؤ میرے ساتھ مل کے کہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ذرا زور سے بولو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اللہ الصمد. تھوڑی دیر عظمت نعت پہ آپ سماعت کر لیں کہ نبی کے نعت پڑھنے کی برکت سے اللہ کیا دیتا ہے، مصطفیٰ کتنا کرم فرماتے ہیں. صاحبوں آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری جماعت کے ایک بہت ماضی قریب کے مجدد اعظم شاہ امام احمد رضا البریلوی الہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم، اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے بہت سارے شعرائے کرام ہوئے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی نعت مقدسہ کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کی زلفوں کو سنوارا ہے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے میرے مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد جو ہے جناب الطاف حسین علی نے میرے مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے. لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا نعت میں ایک ایسا نام بھی آتا ہے جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جو جوانی سے لے کر کے بڑھاپے کھلنے تک جو ہے وہ شراب پیتا تھا. غزلیات کی دنیا کا بہت بڑا شاعر جسے جگر مراد آبادی کہا جاتا تھا، اس کے شراب چھوڑنے کی وجہ کون سی تھی؟ اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر جو ہے نعتیہ مشاعرہ تھا. اب پوچھنے والوں نے کہا تھا اے جگر جو ہے مراد آبادی، تو پوری زندگی غزل کے اشعار لکھتا رہا، ایسا کرنا جو ہے تو نعت کے اشعار بھی پڑھ دے. اللہ الصمد جو ہے اب جگر مراد آبادی ایک شعر کہتے ہیں، کوئی شعر نہیں بن رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں شراب کے بوتل کو لیا ہے اور اس کے بعد پینا شروع کیا ہے. اب شعر نہیں بن پا رہا ہے، پریشان ہے. کہاں ایسا ہے کہ ذرا شراب چھوڑ کر کے تو دیکھ لیتے ہیں. خدا کی قسم جگر مراد آبادی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. نعت کا دوسرا مطلب تیار ہوا ہے، دوسرا مصرع تیار ہوا ہے، اب ایک شعر تیار ہوا ہے. اللہ پر پوری نعت کہنی ہے. پھر تیسرے دن جو ہے شراب کے بوتل کو لے کر کے جان کی مستیوں میں مست ہو جاتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں. اللہ الصمد جو ہے اب جگر مراد آبادی جو ہے مصطفیٰ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس کا وجود پاک ہو، جس کی زبان پاک ہو. تو مجھے کہنے دیا جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہنشاہ بغداد، فیضان غوث اعظم.
जिगर मुरादाबादी बोलते हैं, खुदा की कसम इसी तरह से एक महीना बीत गया, मैं एक पूरा नात ना कह सका, तो किसी ने मशवरा दिया था, ए जिगर मुरादाबादी शराब को छोड़ दे, मुरादे मुस्तफा कह लोगे। अल्लाह अकबर। जिगर मुरादाबादी बोलते हैं, मैंने कसम खा लिया कि अब नाते मुस्तफा का होगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। रात की तन्हाइयों में कलम और कापी लेकर के बैठ गया, पूरी नात तैयार कर दी। किसी ने पूछा था, जिगर मुरादाबादी सबसे लेकर के शाम तक तो शराब में मस्त रहता है, ऐसा बता, ऐसी कौन सी बचे थी, कौन सी चाशनी, कौन सी दवा मिल गई कि तूने शराब छोड़ दिया। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, ये नाते मुस्तफा के पढ़ने की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे जो है शराब छोड़ा करके नबी का आशिक बना दिया, बात कहने वाला शायर बना दिया। तो मुझे कहने दिया जाए, जब तक बिके ना तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल। है नाते मुस्तफा की बरकत। नाते मुस्तफा कोई आसान फन नहीं होता। हाँ, इन शोराए किराम से पूछे, जानो ईमान का भी खतरा होता है साहिबो मुस्तफा की एक नात कहने में। आओ मैं बताऊं, इसी जमीन के ऊपर एक शायर गुजरा है जो गैर मुस्लिम है। क्या है? जरा जोर से बोलो। गैर मुस्लिम है, जिसे चौधरी दिल्लू राम दिल्लू कहा जाता है। उसने एक शेर कहा था, जन्नत में मैं जाऊंगा दावरे महशर के साथ। का तलबगार हूँ। क्या फरमाते हैं? जन्नत में मैं जाऊंगा दावरे महशर के साथ। जब ये शेर कहा है ना, खुदा की कसम कबीले के लोगों ने हाथ को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद कहा, चौधरी दिल्लू राम तो उस मुस्तफा की तारीफ कर रहा है जो गैरों के पेशवा है, जो गैरों के जो है रहनुमा है, जिसे आकाए दो जहां कहा जाता है। तो उस नबी की तारीफ करता है, तुझे राम जी की तारीफ करना चाहिए। लेकिन चौधरी दिल्लू राम तो ये शेर पढ़ रहा है कि मैं जन्नत में जाऊंगा दावरे महशर के साथ। तो जानते चौधरी दिल्लू राम दिल्लू ने कहा था, एक कबीले वाले तुम्हें पता नहीं है, इन आंखों ने मुस्तफा से प्यार कर लिया है, इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बस गई है। अब चौधरी दिल्लू राम जो है सो मुस्तफा की तारीफ कर रहा है, शाम मुस्तफा की तारीफ कर रहा है, दोपहर का सूरज ढल रहा है, दिल्लू राम मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं। अब कबीले के लोगों ने हाथ को पकड़ा है, ला करके एक मैदान में खड़ा कर दिया। अब कबीले के बच्चे अपने हाथों में पत्थर लेकर के चौधरी दिल्लू राम के जिस्म पे मारते, जिस्म से खून निकलने लगता। दिल्लू राम की बच्चियां कहती, अब्बा जी जब मुस्तफा की तुम तारीफ करते हो तो तुम्हें पत्थर मारा जाता है, कबीले से निकाला जाता है, ऐसा है ना? तो मुस्तफा की तारीफ मत करो, मुस्तफा की तौसीफ मत करो। इतना कहना था। दिल्लू राम ने कहा था, बेटा जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा की तारीफ जो है कभी छोड़ दो, जो है ये मुझसे गवारा नहीं है। बच्चियों ने कहा था, मेरे पापा जी ये बताओ, उस मुस्तफा की तुम तारीफ करते हो, तुम्हें मिलता क्या है? बिरादरी के लोगों ने बाईकाट कर दिया है। दिल्लू राम ने कहा था, सब मुझे बेसहारा करते, मदीने का ताजदार मेरा सहारा बनेगा। खुदा की कसम जो है, दिल्लू राम कह रहे थे, जब से उन्होंने मुस्तफा के सुल्फ को देखा, आपने बोल उठे, सुल्फ देखी है, नजरों ने खता देखी है, लुट गया इसने मोहब्बत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर आसिफे मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह समद। लेकिन देखे सही, दिल्लू राम की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है कि दिल्लू राम के हाथ पैर सब जवाब देने लगते हैं। डॉक्टरों ने कहा, ऐसा है ले जाओ ना, अब ये बचने वाला नहीं है, अब ये बोल नहीं सकता, इसके हाथ बगैर सहारे के जो है कोई चीज कर नहीं सकते, इसका पैर बगैर सहारे के अब चल नहीं सकता। अब इतना कहना था, बिरादरी के लोग सारे जमा हो गए, ताने मारने लगे, दिल्लू राम तू कहता था पूरी जिंदगी जिसकी तूने तारीफ किया है, तूने कहा था मेरे गमों का मदावा भी वही करेंगे। डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, तुझे मिला क्या? उस मुस्तफा की तू तारीफ करता रहा, तुझे फायदा क्या मिला? दिल्लू राम की आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, मेरे आका पूरी जिंदगी जो है मैंने आपकी मदह की है, आपकी तारीफ की है, आपकी नात पढ़ी है। अब जिंदगी का आखिर वक्त है, जिंदगी की आखिर सांसें है, चंद सांसें हैं, आका करम
करवा दे, वरना जिंदगी जो है जिंदगी की बाजी हार जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अभी वो जो है मदीने से लगाई थी ना अचानक, जिसके पैर जो है बगैर सहारे के नहीं चल सकते, जिसके पैर जो है बगैर सहारे के नहीं चल सकते, अल्लाह समझ सारी ताकत को इकट्ठा किया और कहा था एक कबीले के लोगों, तुम अभी बैठ करके ताने मार रहे थे, जिस मुस्तफा की तूने तारीफ किया था उस मुस्तफा ने तुझे दिया क्या? खुदा की कसम पूरी जिंदगी जिसकी मैंने तारीफ किया है वो मुस्तफा मेरे पास तशरीफ लाए हैं। मेरे आका ने फरमाया था चौधरी टिल्लू राम जो है पूरी जिंदगी मेरी तारीफ किया, बोल क्या चाहता है, कौन सा इनाम मुस्तफा से लेना चाहता है? चौधरी टिल्लू राम ने कहा था आका मैं जन्नत में आपके साथ जाना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा ने जो है चौधरी टिल्लू राम को कलमा पढ़ाया है, अबू बकर का पीर भाई बनाया है, उमर फारूक आज़म का पीर भाई बना दिया और फरमाया चौधरी टिल्लू राम जो है मेरे आका जैसे ही बढ़े गए। टिल्लू राम ने दामन को थाम लिया, कहा आका जब इतना करम आपने मुझ जैसे गुनहगार पर फरमाया है, एक करम और भी फरमा दे, मुझे इस्लामी नाम भी अता कर दे। मेरे नबी ने फरमाया था आज से तेरा नाम जो है कौसर अली कौसरी होगा। डॉक्टर इकबाल से पहले अगर कौसर अली कौसरी जो है मर्द कलंदर जो है मुहद्दिस कलंदर कलंदर लाहौरी अगर किसी का लक़ब था तो ये कौसर अली कौसरी का था। उठाओ तारीख़ इस्लाम पढ़ो, खुदा की कसम जो है ऐसे ही कलमा पढ़ाया है, मुस्तफा ने नाम अता किया है। आका टिल्लू राम की तहरीर से जाने लगे, टिल्लू राम के जिस्म से रूह परवास कर जाती है। कबीले के लोगों ने जो है उनके पुराने धर्म के मुताबिक जो है अर्थी को तैयार किया है। अर्थी को तैयार करने के बाद जो है उन अक्ल के आमतों को क्या पता, इसने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। लाश को ले जा करके जो है टिल्लू राम के जो है लाहौर के जो है मैदान में रख दिया है। उसके बाद जो है लकड़ियों के गट्ठर को इकट्ठा कर दिया, लाश पे रखा है, लकड़ियों के गट्ठर पर आग लगा दी गई। तारीख शाहिद है, खुदा की कसम सारी लकड़ियां जल गई, टिल्लू राम का जिस्म सही सलामत है। सभी मैली नहीं होती, सबल मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला मुस्तफा की तारीफ। अगर कोई मुस्तफा की तारीफ मुस्तफा आखिर जिंदगी में कलमा पढ़ा दे और पूरी जिंदगी मुस्तफा की तारीफ करता रहे तो जिस्म लकड़ियों के अंदर क्या मजाल, आग के अंदर क्या मजाल कि मुस्तफा के दीवाने का एक बाल भी जो है जला के रख दे, है ना। तो इन शोराए किराम को आप हल्के में मत लिया करो, ये मुस्तफा की तारीफ करते हैं। एक रिवायत पढ़ूंगा, गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे याद है मुझे आधा ही घंटा गुफ्तगू करना है। एक मरतबा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, कर दिया जाए कि तकरीर खत्म कर दी जाए। जरा बोलो ना यार, मोहब्बतों के साथ बोलो। सुनो, दौरे फारूक आजम का दौर है, खिलाफत फारूकी है। सरकार उम्र फारूक आजम की एक आदत थी ना कि शाम के वक्त रात जब हो जाती ना सारा मदीना सो जाता। उम्र फारूक आजम तनो तन्हा पैदल जो है मदीने का गश्त लगाते, चक्कर लगाते और देखते कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई रात की तन्हाइयों में शराब तो नहीं पी रहा है। हजरत उम्र फारूक आजम बयान फरमाते, मैं मदीना की गलियों का चक्कर लगा रहा था, अचानक एक अंसारी सहाबिया के घर से मेरा गुजर हुआ। मैंने क्या देखा कि उसके घर में कुछ आवाज की सदा आ रही थी। उम्र फारूक आजम ठहर गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक। सहाबिया ने दरवाजा खोला, कहा आका इतनी रात को आप कैसे? कहा ऐसा है ना, रात में तेरे घर से कुछ आवाज आ रही थी। कहा हुजूर मैं पूरी रात जो है सूद काटती हूँ, ये सूद की आवाज है। कहा नहीं ये सूद की आवाज नहीं हो सकती, कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। हसन इब्ने साबित की नात पढ़ी जा रही थी। कहा खुदा की कसम जो है इतना कहना था। उमर फारूक आजम ने कहा था ना ये सूद की आवाज नहीं है बल्कि कुछ पढ़ने की आवाज है। कहा ऐसा है ना आका, अगर जान बख्श दे मैं पूरी रात जो है सूद भी काटती हूँ और मुस्तफा पे नात भी पढ़
पढ़ती हो। अल्लाह अकबर इतना कहना था, उमर फारूक आजम ने कहा था, ऐ मेरी बहन, अगर तू जो है रात भर जो है सूत काटती है, मुस्तफा पे नात भी पढ़ती है, तो वो नात जरा सुना दे जो तू अभी पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर इतना कहना था, उमर फारूक आजम ठहर गए। वो सहाबिया नात पढ़ने लगी, उमर फारूक आजम के चश्माने रहमत से आंसुओं के सैलाब जारी हो गई। औरत ने कहा था, ए मेरे आका जो है अभी तो नात मैं पढ़ रही हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? उमर फारूक आजम ने कहा था, खुदा की कसम आज बख्शिश की सनद मिल रही है, अगर कल कयामत के दिन रब्बे तबारक व तआला जो है तुझे नात पढ़ने की बरकत से जन्नत अता करेगा, तो उमर फारूक आजम को नात सुनने की बरकत से जन्नत अता करेगा। जरा सोचो तो सही, आज हमारा मिजाज क्या है? 1400 साल पहले सहाबियों के घर में ये अकीदा रहा, ये मिशन रहा कि वो मुस्तफा की नात पढ़ा करती थी। लेकिन आज हमारे घर का माहौल ये है, फुर्सत के वक्त गाने गाए जाते हैं, टीवी में सीरियल देखे जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं साहिबा हम कामयाब नहीं है। खुदा की कसम तौबा करो, आला हजरत की ज़बान में बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे मुल्क के लोग, नात कोई आसान फन नहीं है, बहुत अजीम फन है। और आखिर में शुराए किराम को एक पैगाम भी देना चाहते, हमेशा जिंदगी में वो शेर पढ़ा करो ना जो हकीकत और इश्क से लिखा करो। हाँ, ऐसा नहीं सौदेबाजी यहाँ नहीं चलती है ना, अक्कारी और मक्कारी नबी के बाजार में नहीं चला करती है ना। एक रिवायत पढ़ूं, शायर कहते पूरी रात, या अल्लाह ये मेरे मौला करम फरमा दे, नबी का करम हो जाए मैं मदीना देख लूं। यार या तो बैंक बैलेंस ही करवा लो, या तो लंबी लंबी गाड़ियों से चल लो, या तो मेरे नबी का मदीना ही देख लो, है ना। आओ, अगर सिद्क दिल से मेरे मुस्तफा की तुम तारीफ करते हो ना, लो मदीने की तरफ लगा लो ना, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा इतना करम फरमा देंगे ना। साकी साहब ने कहा बगैर पासपोर्ट के मदीने शरीफ आ जाओगे, ये गलत नहीं कहते। मुस्तफा का करम हो जाए ना, आधार कार्ड पासपोर्ट सब यहीं के यहीं रह जाएंगे और मुस्तफा अपने दर पे बुला लेंगे, है ना। अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं अपनी मसनवी शरीफ में कि एक चींटी के दिल में मदीने शरीफ की कसरत पैदा हुई, ललक पैदा हुई कि मैं आका का रोजा देखूंगी। ये उलमाए किराम मौजूद हैं। चींटी अशरफुल मखलूकात नहीं है, कायनात में सबसे ज्यादा अगर हसीन व जमील रब ने किसी मखलूक को पैदा किया है तो वो हजरत इंसान है ना। इतना खूबसूरत अशरफुल मखलूकात का खिताब इससे मिला। चींटी ने कहा मेरे दिल में मदीने शरीफ की कसरत पैदा हुई। अल्लामा रूम फरमाते उसने अपने सफर का आगाज किया, अपने सफर का आगाज किया ना, अब मिस्र की वादियों में कदम रखा है। चींटी आप जरा देखें, आपके यहाँ मौजूद होगी, आपने देखा होगा ना, चींटी देखा है ना भैया। अरे यार जिसको चींटी बोलते हो अपनी जबान में, हाँ वही चींटी। अब उसके दिल में ललक पैदा होती है कि मदीने शरीफ की सरहदों पे मैं कदम रखूंगी, आका का रोजा देखूंगी। खुदा की कसम अपने सफर का आगाज किया है, इसके वजूद को आप चुटकियों में उठा करके मसल दें तो उसके वजूद का खातिमा हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, वजूद मिट जाए हजरत। उसके दिल में मदीने शरीफ की कसरत पैदा हुई, अपने सफर को तय करती है। तय करते 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 दरियाए दजला के करीब पहुंचती है। सामने दरियाए दजला है, दरियाए दजला उसके सफर में हाइल हो गया। अब चींटी के दिल में तमन्ना जो है, एक हसरत है, आंखों में आंसू के कतरात है, ये मेरे आका करम फरमा दे। आप मेरे वजूद को देख रहे हैं ना, अगर आपका करम ना फरमाए, ये समंदर की जो लहरें हैं, ये दरिया की जो लहरें हैं, इसके लहरों के ये जो है मेरी जिंदगी फना हो जाएगी। आका अगर आपने करम ना किया तो आपका रोजा कभी देख ना सकूंगी। अल्लाह अकबर, मदीने की तरफ लो लगाया है, आका की जाली की तरफ लो लगाया है, मुस्तफा की तरफ लो लगाया है। इतना अभी दुआ ही कर रही थी कि मेरे नबी के जाली से आवाज आने लगी, एक चींटी घबराने की जरूरत रही है। मेरे गुम्बद का तवाफ करने वाला कबूतर जो है, मैंने उसको फ्लाइट के लिए भेज दिया है, उसके परों पर बैठ करके मेरे शहर आ जा। खुदा की कसम अगर एक चींटी जो है मुस्तफा का दर्द जो है, अपने मुस्तफा के शहर का दर्द अपने दिल में लेके चले, मुस्तफा उसके सवारी का इंतजाम कर दे। सुनिए, अगर तुम अपने जिंदगी में अपने
کہ تم حاجی بنو گے اور تم یہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہاں جا کے بولو گے حاجی وہاں ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی نعت مصطفیٰ میں جھوٹی تعریف نہیں، وہی شعر جس پہ ہمارے اور آپ کا عقیدہ ہو، دل سے جو شعر لکھو، پوری زندگی میں 20 نعت لکھو، ایک نعت لکھو، لیکن وہ نعت لکھو جس میں اپنے آقا سے سچی پکی الفت شامل ہو، ہے نا؟ یہ نعت مصطفیٰ ہے، مغفرت کا سامان ہے یار۔ حضرت حسان ابن ثابت نے بہت گہرا مطالعہ نعت پہ ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے میں گفتگو کو ختم کرا۔ حضرت حسان ابن ثابت کا ایک نعت پورا مشہور زمانہ ہے، میں نے باہر کی دنیا میں جا کر کے سری لنکا وغیرہ میں دیکھا، ایک نعت وہی وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت امام بوصیری نے بہت سارے اشعار پڑھے لیکن ایک نعت قبول ہوئی، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ پوری زندگی میں ایک نعت لکھو نا، وہی حضور کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا میرے آقا میرے ماں و ملجا، اسی ایک نعت کو آپ قبول فرما لے، پوری دنیا میں جتنے افراد ہیں سب پڑھ دے تاکہ میری مغفرت ہو جائے، ہے نا؟ ایک نعت لکھو لیکن عشق مصطفیٰ میں لکھو، ہے نا؟ کبھی جو ہے جھوٹی تعریف نہیں مصطفیٰ کی، دل سے کرو، آقا کرم فرمائیں گے، ہم سب کی مدینہ شریف میں حاضری ہوگی۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔